आई हुई है और अच्छे अच्छे रिसोर्स पर्सन्स वेबिनार्स ले रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि a person like Dr. Dharampani Pandey, very learned person from our physiotherapy fraternity, is taking this particular webinar, and I wish all the best to all of you, and especially all the IAP CEC member of Uttar Pradesh branch, and everybody who is contributing towards the betterment of this profession. So I wish all the best to Dr. Dharampani Pandey and whole team of Uttar Pradesh. Please continue. All the best from my side. Whatever is required from my side, all positivity, all the work, always there. Thank you. Thank you, sir. You have Thank always you, struck the positivity, and today also with your positive word, and definitely we will achieve success and will become the most successful All the best to profession all of yet even better. Thank you, sir. Thank you. So let me start. Let me share my screen here. जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे ही देख पा रहे हैं कि हमने टॉपिक का नाम ही रखा इस तरह का कि एंटीरियर नी पेन एंड एनिग्मा ऑफ हर्पिलिएशन। तो हमेशा से ऐसा देखा जाता है कि जो एंटीरियर नी पेन है, जब हम एंटीरियर नी पेन की बात करते हैं तो इस डायग्नोसिस, इट्स मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, और इसको डायग्नोस करना भी अपने आप में एक हमेशा से चैलेंज रहा। Right. So this is what we are going to learn today, and this is what we are going to learn: how to diagnose anterior knee pain, how we can take care of anterior knee pain. Right. So moving further, in previous lecture, UP branch, also I explained that how the musculoskeletal pain pathophysiology is. So I'll not go in detail, but any musculoskeletal injury, when we talk about any musculoskeletal injury, it can occur in two ways. There is a pathokinesiological mechanism and kinesiopathological mechanism. What is pathokinesiological mechanism? Like, for example, somebody has fell down, and within fraction of second, they get certain kind of pathology. And that pathology, like for example, if we have a tendon tear, rotator cuff tear, with maybe some injury, and all the around the scapula, all the kinesiological mechanism get disturbed. And this is how, again, the kinesiology by dearrangement around shoulder will start causing some impingement around shoulder, some inflammation around shoulder, some tendinitis. And this is how this vicious cycle goes on. So there was the first pathology, then the pathology makes biomechanical alteration, differences in disturbances in kinesiological factors, mechanism around this joint, and again that is secondary leads to pathology. Whereas in second method, you will see that there is a kinesiological dysfunction. फर्स्ट, यानी कोई मसल इनहिबिटेड है अराउंड उसके, आपके जॉइंट के, शोल्डर के, यूजुअली lack of activity, posture nowadays, poor ergonomics, and all these things may lead disturbances in muscle activation pattern and muscle dysfunctions around the shoulder, especially scapular muscle, scapular stabilizer muscle. So one scapular stabilizer muscles get disturbed around. That is going to cause some pathological changes around the shoulder, because there will be inflammation, there will be dysfunction around shoulder, and that is going to. So hope you understood that कि पैथो से काइनेसियोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है और काइनेसियो से पैथोलॉजी हो रही है. Somebody is started playing on the screen. Don't touch your screen, please. Don't touch your screen. You're touching your screen, and I'm getting the things are right here. Please, okay. So patellofemoral and tibiofemoral, there are two types. What we are going to learn today is a patellofemoral component. That is what the Sir, your voice is not clear. My voice is not clear? Yes, sir.
Okay. Now it's okay? No, Now sir, it's it's okay? okay. Oh yes, sir. It's okay. It's Fine. okay now? Yes, sir. It's fine, sir. Okay. Okay. Thank So basically, anterior knee pain pathology comes in. Relatively, it is more in women, and it is called in a relatively younger age disease disorder about around so. So mostly 25-30 की एज में जो यंग वुमेन होती हैं उनमें ज्यादा पाया जाता है, एंड टिपिकल एक प्रेजेंटेशन होता है कि असेंडिंग स्टेयर डाउन स्टेयर्स जाने के टाइम पे या क्लाइंबिंग में उनको पेन होगा नी में, और दैट इज इन इंटीरियर पार्ट ऑफ पेन, ठीक है। थिएटर साइन एक होता है। थिएटर साइन क्या होता है? जैसे गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं और 1 घंटे की ड्राइव करके गए, तो 1 घंटे के बाद जब उतरेंगे तो there will be a lot of anterior knee, right? Then और जब जिस टाइम पे रेस्ट होगा उस टाइम पे ऑलमोस्ट पेन नहीं होगा, यानी कि एक्टिविटी के टाइम पे होगा, वो भी तब जब पेटेला का ट्रैकिंग हो रही है, पेटेला की मूवमेंट हो रही है उस टाइम पे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर, राइट? नाउ what are the causes for anterior knee pain? We're talking about anterior knee pain. So there could be bony abnormality, यानी बोन की वजह से कुछ बोनी abnormality हो, उसकी वजह से हो सकता है anterior pain। अब anterior knee pain का मतलब ये हो गया कि it is not osteoarthritis. Remember that it is not osteoarthritis. So remember that. Okay, it is not osteoarthritis, it is anterior knee pain. नी के सामने वाले हिस्से पे जो है ऊपर यहाँ पे आगे की तरफ पेन, राइट? सो क्या कॉजेज हो सकते हैं? बोनी एबनॉर्मलिटी, सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। आप म्यूट मी, Marit, please don't mute me. You have muted me. Sir, also. I wasn't muting you. Please continue, sir. Okay, yes. Okay. So when you look for abnormality, there are 3 types of patella. You remember that there are 3 types of patella, and one is जब नॉर्मल पैटेला जो होती है उसकी पोजीशन जो होती है, आप देखिए ग्रुप के ऊपर जब आप स्टैंडिंग, देयर आर 2 डिफरेंट मालफॉर्मेशन ऑफ पैटेला। आपको याद रखना है, और भी डिटेल आपको बुक में मिलेगी, आप उसको थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा। एक होता है पटेला बाजा। पटेला बाजा का मतलब होता है पटेला जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन से नीचे ग्रुप में, जहां उसकी ग्रुप होती है। और पटेला अल्टा, अल्टा जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज पटेला अल्टा। जब आप नी को बेंड करेंगे तो कुछ ज्यादा ही ऊपर चलेगी। सो इस मैकेनिज्म में आपको if you have a patellar bony abnormalities, and many of time it is congenital, right? So अगर किसी को हो सकता है, इसमें तो बहुत ज्यादा है, हो सकता है किसी को थोड़ा हो, यहाँ तक थोड़ा और नीचे हो। So whenever you examine any anterior knee pain patient, you must look for whether patient has patella basa or patella alta. Okay, यानी पटेला अपनी जगह से ज्यादा ऊपर तो नहीं है एबनॉर्मली, पटेला अपने जगह से बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं है, राइट? सो अगर ऐसा कुछ हुआ तो पटेलर ट्रैकिंग मूवमेंट जो होगी वो डिस्टर्ब, और अगर ये डिस्टर्ब होगी तो डेफिनेटली देयर विल बी अर्ली डिजेनरेटिव चेंजेस, और ये सारी चीजें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ओके, सो whenever you start examining and looking for cause why this, एक तो आपने बोनी एबनॉर्मलिटीज को फाइंड आउट करने की कोशिश की और उसको आपने रूल आउट कर दिया, ठीक है। अब उसको करने के बाद आपको क्या करना है? आपको देखना है सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ,
और उसके लिए हम हर जगह देखते हैं इस चीज को कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट पैथोलॉजी, एज आई सेड, you looked for pathology around shoulder, right? जहां पे आपने इस चीज को देखा कि पटेला बाजा तो नहीं है उसको, पटेला अल्ट्रा तो नहीं है उसको, राइट? और इसको देखने के बाद आपको ये भी देखना है कि ना फैक्टर्स तो कहीं इन्वॉल्व नहीं है जो नी में पेन आ रहा है, यानी कोई डिस्टेंस और दूसरी जगह की कोई बायोमैकेनिकल डिस्टर्बेंसेस तो नहीं। अब उसके लिए हम क्या देखेंगे? टिबियल टॉर्सन तो नहीं है, ठीक है, पीएस प्लानस तो नहीं है। अगर एंकल का पोजीशन ठीक नहीं होगा तो आपकी टिबियल टॉर्सन होगा और उसकी वजह से आपकी नी की जो पेटेलर मैकेनिज्म है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ समबडी इज कमिंग फॉर विद एंटीरियर नी पेन हैज प्रॉब्लम ओनली एट नी, it could be because of poor biomechanical rearrangement at hip or at ankle. Okay, so definitely you have to look for proximal and as well as distal section, like but femoral anteversion तो नहीं है। कई लोगों का जो normal rotational ये होता है वो भी disturb होता है at hip. So whenever there is a patient with anterior knee pain, look for proximal as well as distal part and the muscle around. Look for any congenital problems like bowing of leg, knock knee, all these things you take history and observation per patient. So उसके बाद आपको actually देखना है कि functional assessment आप करेंगे और लेंथ, मसल्स की लेंथ और इंटीग्रिटी देखेंगे। जैसा मैंने नेक्स्ट पहले भी लेक्चर में शायद कुछ लोगों ने इसमें से अटेंड किया होगा। सो वी हैड एन फंक्शनल असेसमेंट टूल, कैसे हम नी की हैमस्ट्रिंग की फंक्शनल लेंथ देखेंगे, कैसे हम क्वाड्रिसेप्स की फंक्शनल लेंथ देखेंगे, वो आज भी मैं एक बार करूंगा। इस स्लाइड को बहुत अच्छे से आप लोग देखिए, इसमें बहुत कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीजें मिलेंगी सीखने के लिए और देखने के लिए। ये हमारा नी है, ये हमारा नी है। इस नी के अराउंड अगर आप देखें तो आपने सब बहुत बेसिक जानकारी है यहाँ पे कि क्वाड्रिसेप्स, इट इज क्वाड मसल, 4 मसल्स हैं, मीडियलिस है, इंटरमीडियलिस है, लेटरलिस है और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज ए रेक्टस फेमोरिस। ओके, अब आप देखिए मसल्स की ओरिएंटेशन देखिए, ओरिएंटेशन देखिए, दिस इज वास्टस मीडियलिस और इसकी ओरिएंटेशन देखिए, इट इज गोइंग which side it is going, lateralis which side it is going, and the counter force, contraction force उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में मसल फाइबर ज्यादा हो, ठीक है। एंड लेटरालिस इज अ लिटिल बिगर मसल, दूर तक जाती है। ओके, अब इन रिलेशन टू पैटेला अगर हम देखें, इन रिलेशन टू पैटेला अगर हम देखें इस चीज को, तो let me mute everyone because it is really causing problem. Somebody has on his phone. Yes. Please don't unmute yourself while lecture is in progress. Okay, so I was talking about this slide, that there is a muscle orientation here. There is a muscle orientation here, and in relation to patella, if you look here, you will see that what degree of angulation here is. So in relation to patella, this is why it is called oblique, vastus medialis, VMO, vastus medialis oblique, because it has a pulling. There are 2 parts in vastus medialis. There is a vastus medialis lateral and vastus medialis oblique. Okay, so vastus medialis oblique pulls the patella at direction of 50 to 55 degree medially. Okay,
So this is responsible to make the patella moving in track. It is something like this is the track, and the patella is moving in this way. Okay, that the torque from this VMO is required to have an patella moving in a right direction, right? Okay. So when you examine and do functional assessment, imbalance between VMO and what's translated lateralis is definitely going to cause problem, because if you go to previous slides, this is vastus lateralis and this is vastus medialis. If the torque, you know that when we get muscle contracted, once the muscle is getting contracted, right, there is a timing, दोनों के बीच में टाइमिंग होता है। अगर बीएमओ के कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले जो नॉर्मल मूवमेंट होती है जो ऊपर आने के टाइम पे, सो अगर बीएमओ से पहले लेटरलिस कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो इसका पुल जो है इस तरफ चला जाएगा। यानी अगर इस स्लाइड में अगर आप देखें यहाँ पे, तो आप देखें कि लेटरलिस जो है कहाँ पुल कर रही है, इस तरफ पुल कर रही है। लेटरलिस जो है इस डायरेक्शन में पुल कर रही है एंड मेडियलिस इस डायरेक्शन में पुल कर रही है। इसलिए पैटेला जो है फीमर के जो ग्रूव में है वो इजीली मूव हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो पैटेला जो है वो फीमोरल ग्रूव में रब करता हुआ जाएगा और दोनों कार्टिलेज जिसमें से, एंड दैट विल कॉज excruciating pain when movement occurs. Okay, so we have to look for VMO weakness and lateralis overactivation. जो लोग बहुत ज्यादा लेग प्रेस और ये सब चीजें करते हैं उनकी जो लेटरालिस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप देखते होंगे जो साइड में जो बल्क निकली होती है वो लेटरालिस ही होती है। So when lateralis is very strong, it is going to pull more harder towards lateral, और VMO उनकी वीक होगी तो VMO अंदर की तरफ खींच नहीं पाएगी, so they will have pain. Okay, abnormal soft tissue length and tightening of quadriceps. Tightening of quadriceps भी अगर होगी तो VMO छोटी है और बाकी मसल्स स्ट्रॉन्ग है, laterally सबसे स्ट्रॉन्ग और बल्कि मसल होती है, तो उसको भी हमें नोटिस करना है। Okay, then constant flexion movement, patellofemoral joint tightness, iliotibial band की tightness, because iliotibial band जो है वो कहाँ आके अटैच हो रही है ये हमें देखना है। वो आके देखिए यहाँ अटैच होगी। मैं इसलिए दे रहा हूँ स्लाइड पे कि यू अंडरस्टैंड। जो यहाँ आके ये इलियोटिबियल बैंड आ रही है, ये जो कटा हुआ पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज इलियोटिबियल बैंड। अब ये इस साइड से आके पटेला के इस भाग में यहाँ पे अटैच होती है, तो अगर आईटी बैंड टाइट होगी तो पटेला को किस तरफ खींचेगी, लेटरल साइड में खींचेगी, और यहाँ पे भी फिर उसकी पटेला की माल ट्रैकिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। ओके, सो ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो क्या क्या देखनी, एक बार समराइज करें और अच्छे से समझने के लिए। वीकनेस, टाइटनेस कॉर्ड्स की, ओके। दूसरा सॉफ्ट टिश्यू अराउंड टाइट में आईटी बैंड की टाइटनेस देखनी। देन आपको पता है रेटिनाकुला, रेटिनाकुला भी आपको समझना चाहिए। व्हाट इज रेटिनाकुला? इसको इस प्लेस में पोजीशन रखने के लिए लेटरल रेटिनाकुलम है एंड मिडिल रेटिनाकुलम। तो लेटरल रेटिनाकुलम और आईटी बैंड एक साथ जुड़ी होती है। अगर रेटिनाकुला भी टाइट हो गई तो भी उसको खींचेगा पेटेला को वो दूसरी तरफ। ओके, तो नाउ सो फार वी हैव अंडरस्टूड कि आपको एग्जामिन के टाइम पे सॉफ्ट टिश्यू इंटीग्रिटी देखना है। सबसे पहले बोनी स्क्रीनिंग कर लीजिए कि बोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन आप सॉफ्ट टिश्यू स्क्रीनिंग कर लीजिए कि कौन कौन सी मसल स्टार्ट है, और खासकर क्वाड्रिसेप्स और तो इसकी आईटी बैंड, राइट। और वीएमओ की वीकनेस स्पेसिफिक टर्मिनल रेंज में देख लीजिए। वीएमओ का काम होता है 60 डिग्री के ऊपर के रेंज में, ठीक है।
और उसके बाद अब नेक्स्ट आपको क्या सीक्वेंस देखना है कि कैसे आप एंटीरियर नी पेन का डायग्नोसिस करते हैं, क्या सीक्वेंस होना चाहिए आपका। लुक फॉर क्यू एंगल। क्यू एंगल, मैक्सिमम क्यू एंगल जो है 15 डिग्री तक आपको अलाउड है, उससे ज्यादा होगा तो ट्रैकिंग करना, माल ट्रैकिंग होना पेटेला का संभव है कि होना। इसीलिए यही रीजन भी है कि फीमेल्स में, यंग फीमेल्स में ये ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो पेल्विस होती है, फीमेल पेल्विस इज वाइडर देन द नॉर्मल। ओके, सो फीमेल की पेल्विस का आकार बड़ा होता है, ये नेचर है, नेचर ने ऐसा बनाया हुआ है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ही उनका ऐसा। सो द एंगल जो है क्यू एंगल ज्यादा होता है, और इसकी वजह से जो पेटेला की जो ट्रैकिंग होती है वो ज्यादा, इसीलिए फीमेल्स में ये ज्यादा कॉमन है। ओके, मूविंग फर्दर, आप आईटी बैंड की टाइटनेस कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले पूरा दोनों नी को फ्लैक्स कर दीजिए, दोनों हिप को पूरा फ्लैक्स कर दीजिए, यानी दोनों नी को लगा के चेस्ट पे लगा दीजिए। ओके, और दूसरे पेशेंट्स को बोल दीजिए कि आपको इस अदर साइड जिसको टेस्ट नहीं कर रहे हैं उसको पकड़ के रख ले नी को, उसको मूव नहीं होने देना है। ओके, और अब इस पैर को धीरे धीरे नीचे लाइए, ठीक है, पूरी तरीके से नीचे आ जाने। अगर वो सफिशिएंट अमाउंट तक नीचे टेबल के आ जाता है और न्यूट्रल हो जाता है, दैट मींस देयर इज नो टाइटनेस इन इलियोशस, हिप फ्लेक्सर्स। अब उसको थोड़ा सा मेडियली पुश कर दीजिए, ठीक है। अब मेडियली जब पुश करेंगे तो जो लिम्ब है वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, जैसे ही। क्यों मीडियली हम एक्चुअली क्या पुश कर रहे हैं, हम इसको अगर मीडियली पुश करेंगे तो एक्चुअली आईटी बैंड को हम स्ट्रेच दे रहे हैं। तो अगर आईटी बैंड टाइट होगी, स्ट्रेचेबल नहीं होगी, टाइट होगी, तो लिम्ब को वो ऊपर खींच लेगी, क्योंकि यहां से आके यहां वो अटैच हो रही है। तो जैसे ही इसको हम मीडियली ले जाएंगे पैर ऊपर उठ जाएगा, दैट कंफर्म्स दैट आईटी बैंड इज टाइट। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू टेस्ट फॉर आईटी बैंड। और अगर बाहर लाने पे उठता है तो इट इज हिप फ्लेक्सर टाइटनेस, राइट। होप आपको समझ आ गया। फंक्शनल गैस्ट्रोनोमियस टेस्ट आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो लोग उसमें नहीं आए थे उसको उनको मैं बता दूं कि सिटिंग में बिठा के डॉर्सिफ्लेक्शन करा के और उनको सिंपली आप जस्ट इधर फंक्शनल टेस्ट के लिए, फंक्शनल टेस्ट का मतलब ये हो गया कि उसकी सब चीजों के लिए वो सफिशिएंट उसकी लेंथ है कि डॉर्सिफ्लेक्स करा के उसको एक्सटेंशन कराइए नी का। सो अगर डॉर्सिफ्लेक्शन सब न्यूट्रल के से ज्यादा डेविएट हो जाता है, दैट मींस क्वाड्रिसेप्स इज टाइट। इसी तरीके से हैमस्ट्रिंग को भी उल्टा लिटा के और आप उसको फ्लेक्स कराइए। अगर यहाँ पे हिप फ्लेक्शन हो जाता है, दैट मींस क्वाड्रिसेप्स की फ्लेक्सिबिलिटी पुअर है। उल्टा लिटा के, वो तो सिटिंग की गैस्ट्रोनोमियस की हो गई। नाउ क्वाड्रिसेप्स उल्टा लिटा के फ्लेक्स कराइए, और अगर हिप की यहाँ पे मूवमेंट हो जाती है, फ्लेक्शन होता है, दैट मींस देन देयर इज अ शॉर्टनिंग ऑफ क्वाड्रिसेप्स। सेम वे हैमस्ट्रिंग कल भी मैंने बताया, सीधा लंबर नॉर्मल कर्वेचर में स्ट्रेट स्पाइन के साथ बिठाइए, हिप को नी को एक्सटेंड कराइए। इफ द पर्सन इज लूजिंग लंबर स्टेबिलिटी और फ्लेक्शन में जाने लगता है लंबर से, दैट मींस ही इज ट्राइंग टू कंपनसेट फ्रॉम हियर टू अचीव फुल रेंज ऑफ नी एक्सटेंशन। ओके, सो ये 3 फंक्शनल टेस्ट बहुत जरूरी है एंटीरियर नी पेन के केस में, कि to know and to understand that कि उसके अराउंड कोई मसल इस तरह की डैमेज है। कनेक्टिविटी नहीं आ रही जी, क्या नहीं आ रही? कनेक्टिविटी नहीं आ रही सर, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, मेरे पास स्क्रीन क्रैक नहीं हो पा रहा है। आपकी आवाज तो आ रही? आवाज तो आ रही है, स्क्रीन क्रैक नहीं हो पा रहा है। नहीं, ठीक चल रहा है ना, तो ठीक चल रहा है। आपके नेट को देखें, नेट की कनेक्टिविटी शायद पुअर होगी, इसलिए नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो अब आप नेक्स्ट सीक्वेंस पे आप जाएंगे। तो आपने पहले बोन को देख लिया, बोन देखने के बाद आप सॉफ्ट टिश्यू को देख लिया। सॉफ्ट टिश्यू देखने के बाद आपको
ये भी देखना है कि कोई इंटरनल जॉइंट डीअरेंजमेंट तो नहीं है, जॉइंट में कोई डीअरेंजमेंट तो नहीं है। जॉइंट में डीअरेंजमेंट क्या क्या हो सकता है, जैसे मेनिस्कस टियर हो सकता है, ठीक है, और उसको जॉइंट लाइन पे पेन आता है मेनिस्कस टियर में, एसीएल में नहीं आएगा, जबकि जॉइंट लाइन पे आपको मेनिस्कस टियर का पेन जॉइंट लाइन पे आएगा। So at least you have to screen for few tests like McNally and stability test for your joint, so that you understand कि कोई इस तरह की इंटरनल डीअरेंजमेंट तो नहीं, उसको कंफर्म करें। ओके, देन एक वैल्गस एंटीरियर क्रूसेट के लिए, मेनिस्कस के लिए और इन कॉम्प्लेक्स के लिए आपको टेस्ट करना है, ठीक है। ओके, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आपका जो भी असेसमेंट एंटीरियर नी पेन के लिए होना चाहिए, दैट मस्ट इंक्लूड लुकिंग एट फुट, लुकिंग एट लेग, लुकिंग एट नी, लुकिंग एट थाई और मसल्स, लुकिंग एट स्पाइन, कोई स्कोलियोसिस कोई इस तरह की तो चीज नहीं है, एंड प्रॉपर गेट ऑब्जर्व करिए कि किस तरीके से वो चल रहा है। ओके, सो आफ्टर लुकिंग ऑल दीज थिंग्स देन ओनली यू विल एबल टू कंक्लूड कि किस तरीके से हमें आगे और फर्दर जाना है, ठीक है। सो लुक फॉर इम्पेयर्ड मसल स्ट्रेंथ, look for impaired muscle strength, tight hamstring, IT band, lateral retinaculum जो बताया था उसको, तो वो तो नहीं टाइट है, and quadriceps. You have to examine and take note of that. Pain, goal to increase joint protection and self management, ठीक है, जो हमारा गोल होगा पेन के लिए। Impaired muscle performance, muscle imbalance between hip, internal rotator, hip के अराउंड मसल जो भी है, VMO, atrophy, इनकी जो सारी चीजें, इनको लुक आफ्टर करना है, क्योंकि हमें कहीं न कहीं से वहां से इस पे प्रॉब्लम आ रही है जिसको हमें इंप्रूव करना होगा। और जो इम्पेयर्ड मोबिलिटी होगी, क्योंकि उसको पेन हो रहा है, वो जो इधर मोबाइल नहीं है पेटेला, तो इनहिबिशन में जाएगा, उस मोबिलिटी को गेन करने की हमारी जरूरत पड़ेगी। लॉस ऑफ फंक्शन, इंटॉलरेंस डेवलप होगा, इम्पेयर्ड पोस्चर होगा, वो झुक के चलना शुरू कर देगा। सो ये सारी ये चीजें हमें नोट डाउन करना होगा, ठीक है, कि कहाँ से करेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी को 1 साल से नी पेन है तो उसको हो सकता है कि कहीं न कहीं उसको इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी बैक में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, उसकी एंकल में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है, उसकी और सराउंडिंग ग्लूटियल मसल्स भी वीक होनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं उस पेन के लिए कंपनसेट करके चलना शुरू कर रहा है, झुक के चल रहा है, या सीढ़ी में अगर वो प्लांटर फ्लेक्सस को ज्यादा यूज करेगा पुश ऑफ करने के लिए, क्योंकि वो क्वाड्रिसेप्स को ज्यादा टाइट करेगा तो उसको पेन होगा नी में। सो दिस इज हाउ द मसल इनहिबिशन स्टार्ट्स। ओके, सो अब आए हम रिहेबिलिटेशन पे। अगर देखें तो रिहेबिलिटेशन का हमारा क्या गोल होगा इन पेशेंट्स के साथ। इन पेशेंट्स के साथ 2 ही चीज है, बहुत इजीली है और रिमेंबर होना चाहिए आपको। आपने असेसमेंट में जो कुछ भी पकड़ना है कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ नहीं, पेन रिलीफ कराना है और उनकी बायोमैकेनिक्स को करेक्ट करना है। यानी अभी जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है उसका सिम्टम जो है वो पेन है, उस पेन को रिलीफ देना है उसको, और जिसकी वजह से ये पेन आया है, जो मैकेनिकल फॉल्ट था, उसको करेक्ट करना है। सो यही 2 मेजर रोल हमारे पास होते हैं, ठीक है, पेन रिलीफ एंड करेक्ट बायोमैकेनिकल डिसफंक्शन। बिकॉज इफ देयर इज no bony abnormality like patella alta or patella beza नहीं है, तो it is a pure biomechanical dysfunction है patellofemoral pain। और अगर इसको हम ठीक नहीं कर पाते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट तो शायद कोई ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वी आर मूवमेंट साइंटिस्ट स्पेशलिस्ट और हमारे पास वो सारे टूल्स हैं जिससे हम बायोमैकेनिक्स को करेक्ट करने का दावा करते हैं और करते भी, हमारा ही काम है।
तो हमें ये चीज जरूर समझना चाहिए कि अगर हम नहीं कर पाए तो कोई नहीं करेगा इसको। ओके, सो रिहेबिलिटेशन के गोल्स क्या क्या है हमारे पास, जो की प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है हमें। तो अगर आप देखेंगे इसको तो आप पाएंगे कि पहला करेक्शन एंड रीअलाइनमेंट ऑफ बायोमैकेनिकल रीअरेंजमेंट, दूसरा restoration of muscle strength and emphasize the motor control। वो मैं सारी एक्सरसाइजेस आपको भी डेमोन्स्ट्रेशन कराऊंगा। कंट्रोल द नी थ्रू हिप एंड एंकल, यानी पहले मैंने आपको बताया था एंकल में होगा तो हिप में नी में हो सकता है, हिप में एबनॉर्मलिटी होगी तो नी में एबनॉर्मलिटी हो सकती है। तो हमें इन तीनों को एक साथ कंबाइन करके चलना होगा, यानी कि ट्रंक से लेके पूरा ऊपर बॉडी तक की जो सारी नी बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट होता है, इन सबकी बायोमैकेनिक्स को करेक्शन करके इनको देखना होगा। नी पेन मतलब ऐसा नहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस, किसी भी ऑर्थोपेडिक किसी भी सर्जन कहीं पे भी और भी डॉक्टर से बहुत फिजियोस के पास भी कोई भी गया तो नी में पेन आया तो मतलब ओए 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 SWD ये नहीं, ऐसा नहीं है। मैनुअल थेरेपी यूज कीजिए, उसका रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल समझिए एंड देन तभी हमारा जो एक वो है वो स्पेसिफिक एक प्राइमरी केयर जैसा बन पाएगा, राइट। सो द करेक्शन ऑफ एंड रीअलाइनमेंट्स ऑफ बायोमैकेनिकल रीअरेंजमेंट, restoration of muscle strength, control and combination through hip, knee, ankle, enhance soft tissue flexibility and mobility around joint, or increase enhance proprioception and neuromotor control। ये क्यों मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि जहां एक से ज्यादा मसल्स किसी मोमेंट के लिए इन्वॉल्व होती है वहां हर एक मसल्स का अपना एक टाइमिंग होता है। ओके, सो बहुत सारे ऐसी EMG स्टडीज हुई हैं कि हम जब सिट टू स्टैंड कर रहे होते हैं तो वहां किस स्टेज पे लैटरलिस कॉन्ट्रैक्ट होती है, कब मेडियलिस कॉन्ट्रैक्ट होती है, कब जाके आपकी दूसरी और बाकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो इनका अपना एक टाइमिंग है कि किस टाइम पे कौन सी मसल एक्टिवेट हो रही है, राइट। Is waiting for 15 people. I think Manit, you can watch. Dr. Manit, 15 people are I think waiting still. Okay, so ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे कि इन चीजों के ऊपर हमें जाना पड़ेगा, इनको रियल में कंट्रोल करना। ओके ओके, ओके, ग्रेजुअल प्रोग्रेस बैक टू एक्टिविटी लाना है उसको। ओके, लास्ट जो था, ठीक है, जैसे मैंने बताया बहुत सारे ऐसे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस वाले एक्सरसाइज वाले सारे हमारे पास पड़े हैं और हाई क्लास एविडेंसेस हैं कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट इज द बेस्ट फॉर पैथोलॉजिकल पेन एंड वी आर द ओनली पीपल हु कैन रियली में जो ट्रीट कर सकते हैं पैथोलॉजिकल पेन को एफिशिएंटली। ओके, अनलेस एंड अनटिल इट इज समथिंग bony malformation, अगर malformation नहीं है so it is pure work of movement science specialist that what we are। हमें हमारे पास है इसको ठीक करने का, हमारे पास इसके हुनर भी है, राइट। तो जस्ट मैं समराइज करूंगा कि क्या क्या चीजें प्रॉब्लम हो सकती हैं और कैसे उसको हम इसको ठीक कर सकते हैं। पहला, थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज जो हैं और हमारा इंटरवेंशन क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। स्ट्रेचिंग ऑफ टाइट स्ट्रक्चर, राइट, क्या क्या पॉसिबिलिटी है किस किस की टाइट होने की। हैमस्ट्रिंग टाइट हो सकती है, IT बैंड टाइट हो सकती है, लुक फॉर दैट। लेटरल रेटिकुलर टाइट हो सकता है, लुक फॉर दैट। काफ में भी टाइट, लुक फॉर दैट, दैट इज गैस्ट्रोनेमियस। वीक कौन कौन सी मसल हो सकती है जिसकी वजह से नी के ऊपर एबनॉर्मलिटीज आ सकती है, स्ट्रेंथनिंग जिसकी रिक्वायर्ड हो सकती है, कोर मसल वीक हो सकती है एंड अबव ऑल द मसल व्हाट इच मे बी टाइट, इट मे बी वन और टू मे बी वीक। यानी
क्वाड्रिसेप्स हो सकता है टाइट हो, हैमस्ट्रिंग वीक हो, हैमस्ट्रिंग टाइट हो, क्वाड्रिसेप्स वीक हो, plantar fascial weak ho, quadriceps tight ho. So either of anything can happen. Okay. So wherever you find tightness, you will give stretching. Wherever you will find weakness, you will try to facilitate. And it is not only two things. Proprioceptive kinesthetic facilitation is very important. ठीक है, जो मैंने बताया कि यानी हमें मोटर कंट्रोल उस मसल्स को बहुत अच्छे से देना है। खासकर दो जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जगह तो होता ही है पर दो जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो स्कैपुला के केस में और दूसरा हमारे नी के केस में। क्यों? क्योंकि स्कैपुला को भी कंट्रोल करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ मस्कुलेचर अराउंड, और नी को भी कंट्रोल करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ मसल्स एंड इमीडिएट एक्चुअली नी के पास ही नहीं बट उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे पेरिफेरल, प्रॉक्सिमल और डिजिटल मसल भी उस पे कंट्रोल में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी कि आपका टिबियल रोटेशन होगा तो भी नी का अलाइनमेंट खराब हो जाएगा, फीमर रोटेट करेगी तो भी नी में पेन होगा। सो तो जो टोटल लोअर लिम्ब है उनकी ही हमें अच्छे से ट्यूनिंग करनी बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, EMG अगर आप लोगों ने सुना है, EMG का बहुत अच्छा इस टाइम पे रोल आया है करेक्टिव एक्सरसाइज और उनको सेलेक्टिव VMO मोटर ट्रेनिंग करने के लिए। हमने रिसर्च किया था यहाँ पे, आपको मैं शेयर करूंगा इसको यहाँ पे, कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी के साथ कैसे उसको कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स हम जनरेट कर सकते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। ओके, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देखिएगा। ओके, यहाँ पे कि ये आपका जो कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स है और ये आपका डेज ऑफ ट्रेनिंग है, यानी टाइमिंग है ना, ट्रेनिंग जब हम देते हैं किसी चीज की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो ये नीचे वाला जो ग्राफ है, लाइन है, एक्सिस है, ये आपको वीक दिखा रहा है, और ये कंट्रक्टिविटी और कंट्रीब्यूशन ऑफ मसल फोर्स प्रोडक्शन, कितना मसल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। Everyone is able to hear? Yes. Okay. So पहले हमने यहाँ से ट्रेनिंग की तो कैसे उसका देखिए नॉर्मल जो लेंथ, उसकी जो पावर है वो बढ़ रही है यहाँ से। ओके, और पावर बढ़ के चलती गई, पावर यहाँ पे एक लेवल तक जाके रीच हुई, और उसके बाद हमारे उस ट्रेनिंग का कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है। दूसरे केस में यहाँ देखो, ये न्यूरल फैक्टर है, यहां तक आने के बाद जो इसमें क्या, एक्चुअली आप ग्राफ को और सिंप्लीफाई करता हूं कि न्यूरल फैक्टर क्या, किस चीज में क्यों इंपॉर्टेंट होती है। मसल्स का जो हाइपरट्रॉफी है, बल्क ही सब कुछ नहीं होता है, उसका कंट्रोल होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो तो एक बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर जो है, एक बहुत अच्छा जिम्नास्ट हो सकता है, राइट, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। वो शायद सबसे पुअर जिम्नास्ट होगा, एक अच्छा बॉडी बिल्डर जिसके पास बहुत अच्छा मसल बल्क होगा, जबकि एक बहुत ही छरहरा इंसान जो है वो बहुत अच्छा एसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करके एक जिम्नास्ट बन सकता है। इस ग्राफ में यही चीज बताया गया है कि एक सर्टेन लिमिट के बाद जो एक्सरसाइज हम करते हैं उससे हमारा जो न्यूरल फैक्टर काम आता है, यानी कि नर्व, उसकी जो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है, मोटर यूनिट्स का रिक्रूटमेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो इनएक्टिव मोटर यूनिट्स होते हैं उनका रिक्रूटमेंट बढ़ता है, जिससे टॉर्क बढ़ना लगता है। Okay, so it is not always necessary that if you have a very good bulk, you will have more strength, more torque generation. It is not necessary. Okay, इस वीडियो में देखिए एक बार। Okay, एक ये पहला वीडियो आप देखिए, इसमें आप देखें एक पेटेलर मॉल ट्रैकिंग का पेशेंट है, ये एंटीरियर नी पेन का, ठीक है। तो इसकी एंगल देखिए किस तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है क्वाड्रिसेप्स, तो कहाँ जा रहा है, किस तरफ, ठीक है। इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेटरल, यानी कि इस यहाँ जो ग्रूव होगा
आपके फीमर का उसके ऊपर रब कर रहा होगा। कैन यू सी दैट इट इज मूविंग टुवर्ड्स लैटरल। ठीक है, अब इसकी हमने ट्रेनिंग न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन के साथ की है। ओके, सो आप उसी को इस पिक्चर में देखिए कि हाउ द पेटेला इज मूविंग, स्टार्टेड मूविंग medially in this. Okay, you just compare patella, same patient है and at the same time. तो यहाँ एक्चुअली क्या है, टाइमिंग के साथ EMG गाइडेड NMS दे रहे हैं, तो ये उस तरफ मूव हो रहा है। एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग हियर इज हम उसके VMO की एक्टिवेशन पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसका जो VMO है वो ठीक से एक्टिवेटेड नहीं है, तो बिफोर VMO एक्टिवेट मूवमेंट में उसकी लैटरलिस एक्टिवेट हो जा रही है, तो ये मूवमेंट इधर ज्यादा हो जा रही है, ओवरटेक हो जा रही है। जबकि यहाँ अगर उसी के साथ साथ जब एक्टिवेट हो जा रही है VMO, तो उसकी जो ट्रैकिंग है वो परफेक्ट हो जा रही है। सो एंड दिस इज व्हाट we should achieve in our strengthening program. Okay, हमने एक इसके ऊपर आर्टिकल पे पब्लिश किया था, फिजियोथेरेपी अप्रोच मैनेजमेंट फॉर पैटेलोफिमोरल सिंड्रोम। उसमें हमने देखा था इस चीज को। आपको मैं एक्सरे दिखाता हूँ, जस्ट सिंपली वो एक्सरे दिखा दूं, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इसके लिए मैं आपको। सो आप देख सकते हैं कि एक्सरे एविडेंस क्या है इसकी। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये एक्सरे था उसका जो, और फीमर कुछ इस तरह की होती है, आपने देखा होगा एनाटॉमी में। सो एक्चुअली पेटेला अगर इसके बीच में ठीक से मूवमेंट हो रही है उसकी स्मूथ, तब तो वियर एंड टियर नहीं होगा। अगर पेटेला लेटरली ज्यादा भागेगी जाएगी, अगर टिल्ट होगी, तो टिल्टिंग की वजह से, क्योंकि इस साइड की स्ट्रक्चर्स टाइट है, रेटिनाकुला टाइट है, IT बैंड टाइट है, लैटरलिस इसको पुल कर रही है, तो पेटेला इसके ऊपर आकर रब कर रही है इस कॉर्नर पे, एंड दिस इज व्हाट कॉजिंग एंटीरियर नी पेन। जब इस स्ट्रक्चर को आप रिलीज कर रहे हैं और इधर से VMO को मीडियल साइज में एक्टिवेट कर रहे हैं, तब ये टिल्ट आपका खत्म भी होगा, डिग्री ऑफ टिल्ट भी कम होगा, और ये इसके बीच में स्पेस क्रिएट होगा जिससे कि रबिंग एक्टिविटी खत्म होगी, एंड patient will have relief from एक्टिवेशन पैटर्न। अब थोड़ा सा और एडवांस ट्रेनिंग में अगर जाएंगे तो EMG के साथ आप ट्रेनिंग कर सकते हैं विद 2 चैनल EMG गाइडेड एक्टिविटी, एक चैनल VMO पे और एक चैनल इस पे, जो एथलीट्स में आप कर सकते हैं। अब आपको दिखाता हूं मैं स्क्रीन आपको EMG की। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि अगर एक्टिवेशन पैटर्न अगर इस ऊपर वाले एक्टिविटी में देखें तो दिस इज लैटरलिस, ठीक है, और ये मेडियलिस है, VMO है। तो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 0.6 माइक्रोवोल्ट का रेस्टिंग पोटेंशियल है उस मसल्स में, और यहाँ बहुत ही प्योरली इनहिबिटेड 0.2 माइक्रोवोल्ट अपना पड़ा हुआ है। जबकि इवन यहाँ पे कुछ एक्टिविटी भी हो रही है, यहाँ पे स्टैटिक है, जैसे वो सोया ही पड़ा हुआ है मसल, कुछ पता ही नहीं चल रहा उसमें। ठीक है, और उसकी ट्रेनिंग के बाद कुछ दिनों के बाद जब कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, तो देखिए हाउ ही इज एबल टू रिक्रूट दिस मसल एट लीस्ट। ठीक है, रिक्रूटमेंट पैटर्न उसका चेंज हो, स्टिल लैटरलिस ओवर कर रही है, बट उसका डेफिनेटली उसका ज्यादा रहेगा हमेशा, क्योंकि पावरफुल मसल है, बट उसका एक्टिवेशन पैटर्न इन मेडियलिस इज बीइंग चेंज्ड विद ट्रेनिंग। ठीक है, तो क्या ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए और क्या क्या मसल्स की क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। ओके, सो स्टार्ट विद दीस बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। ओके, बेसिक सिंपल एक्सरसाइजेस ऑफ हैम्स, काफ ऐसे रिलीज करके आप कर रहे हो, बेसिक, इट इज नॉट नेसेसरी बहुत स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है, ये देखना है आपको स्पेसिफिक IT बैंड स्ट्रेच। ओके, यहां लाने के बाद आपको आई विल प्ले इट अगेन फॉर यू। सो तो सबसे पहले हम उसको
Okay. Just a second. Yes. So we start here. एक्सटेंशन में ले गए. इसमें ध्यान ये रखना है कि आपकी जो पेल्विस है वो स्टेबलाइज हो. And then when you bring it down, then you extend the knee. So this will give a stretch to IT band. ठीक है. दूसरा और कौन सा स्ट्रक्चर था हमारा? लेटरल रेटिनाकुला, जो टाइट थी जिसकी वजह से पुल कर रही थी, तो हमें लेटरल रेटिनाकुला को भी मोबिलाइज करना है. ओके. So just by simple way doing that, getting its mobility by stretching lateral retinacula here. Okay. The next short arc exercises. Short arc VMO, जिसको छोटे छोटे हम शॉर्ट आर्क में कराने के लिए सिंपल एक्सरसाइज है. कितनी भी आपको स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट करना है, छोटा पोस्टर रख के. ओके. एंड यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको? हिप इन एक्सटर्नल रोटेशन एटलीस्ट 5 to 10 डिग्री. ठीक है. जिससे कि अच्छा 15 से ज्यादा डिग्री करना भी नहीं है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा कर दिया तो फिर एडक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे. सो रिसर्च सेज दैट 5 to 10 डिग्री ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन एंड देन डू VMO ट्रेनिंग इन शॉर्ट आर्क. वेट डालिए, होल्ड कराइए 10 सेकेंड तक, मैक्सिमम 7 to 10-15 जैसे प्रोग्रेसिंग अपना ग्रेजुअल प्रोग्रेस कर सकते हैं. होल्ड टाइम बढ़ा के, फिर वेट बढ़ा के. राइट. अगर सीधा सीधा करेंगे तो रेक्टस फेमोरिस ज्यादा एक्टिवेट होगी. हमें बेसिकली VMO को रीएक्टिवेट करना है. तो VMO को रीएक्टिवेट करने के लिए 5 to 10 डिग्री ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप. अगर 15 से ज्यादा कर देंगे तो एडक्टर पार्ट जो है वो ओवर एक्टिवेट हो जाएगा. सीधे में नहीं करना, थोड़ा टिल्ट करना. थोड़े टिल्ट करने से आपका जो है VMO एक्टिवेट होगा. ओके. जो कॉमन मिस्टेक्स होती है इस एक्सरसाइज में वो नोट करिए आप. नो ग्लूटियल कॉन्ट्रैक्शन. ग्लूटियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देना है इस टाइम पे. राइट. क्या होगा? जो VMO कॉन्ट्रैक्शन को पैल्पेट करना है और गाइड करना है कि VMO कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और वर्बली पेशेंट को एनकरेज करना है टैप करके, हैंड पे एक्टिवेट करके कि वो VMO के ऊपर कंसंट्रेट करके VMO को कॉन्ट्रैक्ट करे और ग्लूटियल को ना करे. सो ये प्रिकॉशन लेनी चाहिए. ठीक है. देन दूसरी जो एक्सरसाइज है आपकी ग्लूटियल स्ट्रेंथनिंग के लिए. ठीक है. थेरा लूप ले सकते हैं या फिर दूसरी कोई एक्सरसाइज बैंड आपकी है. अरे अमित जी बंद तो कर लीजिए. अमित जी और कौन कर रखा है हम? कौन है भाई? ओके. Dr. Manik, please watch out. So many people are unmuted. Okay. So precaution, no trunk rotation. यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ट्रंक रोटेशन नहीं होने देना है. यहाँ ग्लूटियल के ऊपर एक्टिविटी होनी चाहिए. ग्लूटियल मसल एक्टिवेट होना चाहिए, ना कि ट्रंक. अगर ट्रंक होगा तो ट्रंक की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, ग्लूटियल की नहीं. ओके. ओके. Just give me a few seconds. Somebody is कोई गाना सुनने का मजा ले रहा है इसमें. Sir, I'm not able to send them messages also so that I can ask them to please mute.
even I don't know how they are doing this. Let me handle it. Wait. Just give me 2 seconds. If you can just tell me their name, I could maybe identify them. This is what I'm not able to find. Somebody is singing here. You please mute everyone and then unmute me. Please mute everyone and unmute me then. Wait. I'm just unmuting. Wait. It's very difficult to handle people here, right? Okay. Can you hear me? Manik? Can you hear me now? Can you hear me? Okay. Okay. So now the next exercise here is, this is what I was telling. Okay. And then this is the one exercise. Okay. So here you can see that these are the exercises which is important for having a good what you say is having good neuromuscular control. Okay, so this is what the good, very simple exercises, but this has a lot of koi resistance nahi dena, kahin kuch nahi dena, but simply we are challenging the proprioceptive activity at ankle, hip, trunk, knee by just making an unstable surface. Okay, so प्रोग्रेस हम इसकी कैसे करा सकते हैं? स्लाइट सपोर्ट देके थोड़ा सा पहले इनिशियली, और देन स्लोली उसकी सपोर्ट को हम मिनिमाइज करते जाएं. सो दैट वे, ठीक है, पोस्चर सही होना चाहिए जब बैठे हो. ओके, ये इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है. दूसरा आपको नेक्स्ट मूविंग साइड सेमी लंज, साइडवेज में, ओके, इनर थाई को फोकस करते हुए साइड लंजेस आपको कराने हैं. This is the national level player in swimmer. This girl is. Okay, so focusing on the VMO part, side lateral lunges, just holding for 5 to 7 seconds or 10 seconds, no resistance required in the initial stage. Okay, so this is the one exercise you can do. Then another exercise is to have wide based semi squat. Again, wide based because we are trying to externally rotate the hip so that there is a focus here on the VMO. Basically, we are trying to activate VMO and we are not going very much. You can watch out कि जो angle है वो हम 15, 20, 25 डिग्री, 30 डिग्री से ज्यादा नहीं ले जा रहे. Okay, तो semi squat, not full squat. Full squat will cause more problem. Okay, so don't do full squat. Okay, trunk bending नहीं होने देना है उसमें. Okay, then to move on to proprioceptive training. Trampoline पे करा सकते हैं या कोई भी ऐसे unstable surface हो जहाँ पे, वहाँ पे, okay, with slight support के साथ पहले करा सकते हैं, and फिर धीरे धीरे. Basically, these are the proprioceptive training around activating neuromotor control around hip, knee, ankle. Okay, तो एक ये हो गई, कोई भी resistance नहीं है इसमें. Okay, then forward semi lunge. Okay, forward semi lunge. This is another exercise. यहाँ पे ध्यान देना आपको जरूरत है कि आप नी के ऊपर मूवमेंट कर रहे हैं, ना कि आपके ट्रंक पे मूवमेंट हो रही है. नी पे मूवमेंट होना चाहिए, ट्रंक पे नहीं. Okay, so this is the one exercise which then even further going for some more training. So you can have some
activities, advanced activity, Pilates based exercises and standing on. This is the more advanced. He is athletes, he is swimmers, he can do it very rightly. But थोड़ा सा हम और लोगों को कराने में थोड़ी सी difficulty आएगी. So we can start with some support. Okay. Then advance, like on wedge standing and having some more proprioceptive. और बेस पे खड़े करेंगे तो आगे fall होने की chances होंगे. उसमें फिर करेंगे. This is what the progression is. We can just move ahead with progress. Even when C is having some problem, you can just see. So these are the exercises with the Pilates based kinesthetic kinesiological facilitation of all the proprioception and kinesthetic facilitation. So हमारी therapeutic exercises जो भी हैं उसमें क्या improve होगा? Strengthening होगा, जो भी surrounding muscles का glute max, medial quadriceps, hamstring, all these, whichever muscle is needed, whichever muscles or structures are tight, we need to have a stretching, we need to have a strengthening and stabilization, proprioceptive balance training at hip, knee, around. And look for the patient education about footwear, patellar trapping and all these things. Okay, अगर कुछ इस तरह की आपको लगती है कि उसकी फुटवेयर वगैरह में प्रॉब्लम्स है, बेसिक उसका आइडिया यही होगा कि उसको आप सही फुटवेयर और ये सारी चीजें जो है एडवाइस करें. ओके, सो अगेन आई एम कमिंग एट लास्ट एंड द फर्स्ट बिगिनिंग also the same thing I said. The principle is to correction of biomechanical dearrangement around knee and realignment of extensor mechanism. Extensor mechanism हमारी poor muscle balance की वजह से खराब हो गई है, इसलिए पटेलर माल ट्रैकिंग होगी. पटेला की माल ट्रैकिंग हो रही है, इधर उधर आ रही है, जिसको हमें करेक्ट करना है. ठीक है. एंड सिम्टोमेटिक whatever pain relief you have, you can provide. So एरी एंटीरियर नी पेन अगर आप उसको डायग्नोज कर लिए हो तो आप 3 स्टेजेस में उसको ट्रीट कर सकते हो. और वो 3 स्टेजेस क्या हैं आपके? पहला, लेवल 1 एक्सरसाइज क्या क्या देनी है आपको? स्ट्रेंथनिंग ऑफ टाइट स्ट्रक्चर्स लाइक हैमस्ट्रिंग, आईटी, लैटरल कनकुलर काफ, स्ट्रेंथनिंग एंड फैसिलिटेशन करानी है. एंड थेरेपी जो भी टेंस, यूएस क्रायोथेरेपी, अगर इन्फ्लेमेशन है, जो भी पेन वगैरह है वो. लेवल 2 की एक्सरसाइजेज में नाउ वी हैव टू स्टार्ट क्लोज काइनेटिक लाइक पिलाटेस बेस्ड और लिटिल मोर सुमो स्क्वाट. उसको वाइड साइड, जो साइड वाली स्ट्रेच स्क्वाटिंग होती है उसको सुमो स्क्वाट भी कहते हैं. सुमो लोग वैसे ही बैठते हैं ना, सुमो पहलवान, उस तरह की जो सेमी स्क्वाट करानी है. लेटरल स्टेप अप कराना है, यानी एक पहले छोटे लेवल पे उसको स्टेप डाउन स्टेप कराना है. ठीक है, लैटरल साइड से एंड देन फ्रंट से भी, दोनों तरफ से. ओके, एंड साइड से भी, तीनों तरफ से स्टेप अप एंड डाउन, स्टेप अप एंड डाउन कराना है. ठीक है, दैट अगेन साइकिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं लेवल 2 में जब उसका पेन रिलीफ सफिशिएंटली कम हो जाए. ओके, थेरेपी से उसके बाद प्रोग्रेशन स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं. 15 to 20 डिग्री हिप रोटेशन में VMO की 60 आर्क ट्रेनिंग करा सकते हैं. एंड दैट इज फ्रॉम 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन ऑफ नी टू 0 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन तक. दैट इज द मोस्ट range where VMO is inhibited, and this is what the main purpose of VMO. Calf raises करा सकते हैं 5 to 10 डिग्री नी फ्लेक्शन में. अगर 5 to 10 डिग्री एविडेंस ये कहता है, अगर 5 to 10 डिग्री फ्लेक्शन में काफ को रेज कराएंगे, so there will be reciprocal stimulation to VMO, that is also there. तो लेवल 2 में उस चीज की एक्टिविटी हम शुरू करा सकते हैं. प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइज जैसा मैंने आपको दिखाया था उस तरह की करा सकते हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट द सुमो स्क्वाट है. लेवल 3 में वाइड बेस्ड लैटरल रोटेशन, क्रॉस ट्रेनर जैसी एक्टिविटी शुरू करा सकते हैं. और पेन खत्म हो गया है, एथलेटिक एक्टिविटी आप इस टाइम से एजिलिटी बायोमेट्रिक शुरू करा सकते हैं. तो बेसिकली इट इज नॉट सेट प्रोटोकॉल फॉर एंटीरियर नी पेन, बट यस, लेवल बाय लेवल. First level, because the pain hoga, we don't want more rubbing, we don't want more cartilage damage, we want
healing process to occur. Same times you are trying to correct biomechanics. You can take help of taping, kinesiotaping, all those techniques to correct the particular mechanism at early stage, and then with help of all these techniques to जो उसको arrangement de-arrangement ठीक करना है, उन de-arrangement को ठीक करिए. So this is all the protocol. This is how you have to manage anterior knee. Thank you so much for your precious time, and I think I have completed on time. और आप लोगों को मिला भी होगा कुछ इस लेक्चर से, एंड इतना देर आप आए, इतना देर साथ रहे, तो शायद मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया कि आप लोगों को कुछ दे के जाऊं. ऐसे 1 घंटे आप लोगों ने समय निकाल के यहाँ रहे मेरे साथ, तो मैंने तो कोशिश की कि आपको कुछ दिया जाए. एंड बाकी मैडम बताएंगे और सब लोग बताएंगे कि इफ आई एम एबल टू डिलीवर. थैंक यू. No, sir. Thank you so much, sir. आपने बहुत अच्छा समझाया. Please, if anyone have any query, please let Dharab know. Hello, Manit sir. Manish sir, you can unmute yourself and. Dharab sir. Oh, yes, I can unmute myself. Thank you, Dharam sir. Thanks a lot. I think I just saw a message about fat impingement pain or syndrome something. So people have lots and lots of excitements when they see you and when they see how much knowledge you possess about the knee joint. Okay. It has always been a typical thing, right from the days we learned about close kinematic exercises and up to the proprioceptive training. It has always been a very typical thing. I'm sure most of us must have learned a lot, and this is the real physio, guys. Kai baar I have spoken to many in individual capacity about that. When you simply go with the SWT and stimulation and IFT, you are not really helping yourself at all. You're not really helping the patient, and you're not really helping yourself at all. Now, if you have attended this, I'm sure you will go out being a better physio for sure. And thank you, sir. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you very much. So shall we close the session now? Sure, sir. Yeah, okay. Thank you all the Okay, sir. participants.